देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में ये मौका है आईसीआईसीआई ग्रुप की 60वीं वर्षगांठ का। 5 जनवरी 2015 को आईसीआईसीआई ग्रुप ने पूरे किए अपने सुनहरे 60 साल। आईसीआईसीआई ग्रुप की 60वीं सालगिरह के इस मौके पर मौजूद रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, सूचना प्रसारण और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, महाराष्ट्र के गवर्नर श्री सी विद्यासागर राव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। ये वो वक्त है जिसमें सिमट आई है देश के विकास की दास्तान में आईसीआईसीआई ग्रुप के सहयोग की कहानी भी। भारत के विकास के सफर में हर कदम आईसीआईसीआई ग्रुप साथ रहा और इसी सच को शब्द दिए आईसीआईसीआई बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मिस चंदा कोचर ने अपने अभिवादन में। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब से हमारे देश ने अपने इंडस्ट्रियल बेस का विकास आरंभ किया, तभी से आईसीआईसीआई भी देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। On 5th of January, the ICICI Group completes 60 years since it was established in 1955 as the Industrial Credit and Investment Corporation of India. Over these years, we have not only partnered the nation's progress, but we have sought to catalyze growth by bringing about positive change in the country. We have financed projects in core industrial sectors like steel, cement, aluminium, petrochemicals, textiles, automobiles. We have played a key role in financing infrastructure. We have financed thousands of megawatts of power capacity, including India's largest hydro power project in the private sector, millions of tons of steel capacity, India's largest expressway, India's first greenfield private sector airport, largest airport modernization project, and so on. We have also played a role in several policy development committees, such as the National Telecom Policy as early as in 1999. As India changed and the needs of Indian people evolved, ICICI stepped in to meet the aspirations of our demography. We rapidly expanded, or rather I should say, we actually created the retail loan market in the country. Over the last 15 years, we have disbursed an aggregate of 2,75,000 crores of home loans and 1,15,000 crores of automobile loans. Through our global presence, we are facilitating trade and investment flows to and from India and serving the vast non-resident Indian community. We have gone beyond banking to become a leader in the whole range of financial services, including insurance and mutual funds. But even as we continue to diversify and expand, we have never forgotten that this institution was established to accelerate development of this country. The ICICI Group has a long history of contributing to inclusive growth. We have been focusing specifically on 4 areas: education, healthcare, skill development, and financial inclusion. And in the recent years, we have substantially scaled up our activities in skill development and financial inclusion. Through the ICICI Academy for Skills, we are providing vocational training free of cost. सर, इस इनिशिएटिव के द्वारा हम यूथ को वो स्किल्स देना चाहते हैं जिससे वो देश के आर्थिक विकास का हिस्सा बन सकें और जिससे देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिल सके। हमने एक साल में 6,500 से ज़्यादा यूथ को ट्रेनिंग दी है। ये यूथ 350 गांवों से आए हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि इसमें से 28% लड़कियां हैं। सर, हमने 2010 में अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान बनाया था और इन 4 वर्षों में हमने लगभग 2 करोड़ फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट्स खोले हैं। हमने 15,000 गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है और इनमें से कई गांव ऐसे हैं जहां इससे पहले कोई भी बैंकिंग सुविधा नहीं थी। हमारी माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव से लगभग 12 लाख महिलाओं को लाभ हुआ है। We are also making a contribution to the Swachh Bharat Abhiyan through a full 1-year program
where every single day the team of one of our branches cleans their surrounding areas. माननीय प्रधानमंत्री जी, आईसीआईसीआई की 60वीं वर्षगांठ पर हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आईसीआईसीआई ग्रुप देश के विकास में अपनी भूमिका निभाता रहेगा. And to those millions of smaller customers who are not present with us here today, but who reside in the cities, towns and villages of India, I would like to say that we at the ICICI Group will continue to strive to bring new products, new services and greater ease and convenience to you to help you grow with the nation's growth. And to my current colleagues at the ICICI Group, I would like to say that it is indeed a privilege to be a part of this institution, an institution with a rich legacy combined with a forward-looking perspective. Let us all resolve today that we will continue to work together to honor this legacy and contribute to nation building. मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आईसीआईसीआई ग्रुप को उसकी 60वीं वर्षगांठ पर बधाई दी. साथ ही आईसीआईसीआई ग्रुप से भविष्य में उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इसका भी जिक्र किया. व्यक्ति के एक जीवन में 60 साल बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन संस्था के जीवन में एक प्रकार से उसका प्रारंभ होता है. और मैं मानता हूं कि अब आईसीआईसीआई ग्रुप उस स्थिति में पहुंच रहा है जिसके बदौलत जिन आशा और आकांक्षाओं को लेकर के उसका जन्म हुआ, जिन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उसने यात्रा की, उसको अचीव करने का अब उसके सामने समय आया है. लेकिन 60 साल का यह अनुभव भारत की विकास यात्रा में बैंकिंग सेक्टर के योगदान में एक बहुमूल्य भूमिका निभाने का, उसकी सफलता का आंक आने वाले दिनों में देश की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक ताकतवर बनाने में बहुत बहुत उपयोगी होगा. मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. मैं आशा करता हूं कि जब 60 साल मनाए जा रहे हैं, क्यों न ग्रुप के प्रमुख लोग बैठे, ग्रासरूट लेवल के बैंक के साथ जुड़े हुए सभी लोग बैठे, और हम जब 75 साल के होंगे तब तक क्या क्या अचीव करेंगे, हमारा सोशल चार्टर क्या होगा, और एक देश के सामने उस रूप में बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई लीड कर सकता है क्या कि फॉर 15 इयर्स, नेक्स्ट 15 इयर्स 75 सेलिब्रेट करने से पहले हम ये सोशल चार्टर लेकर के आ रहे हैं. 10 हो, 12 हो, 15 हो, इन चीजों को हम देश में ला करके रहेंगे. कभी कभार एक आध इंस्टीट्यूशन लीड करती है तो बाकी सब उसको फॉलो करते हैं और अपने आप में एक मोमेंटम बन जाता है और उस दिशा में हम काम कर सकते हैं. भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. बहुत बड़ा वर्ग है जो आवश्यकता से अधिक गोल्ड रखता है. उसका मूल कारण उसके दिमाग में सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर होता है. अगर बैंक के द्वारा उसको एश्योरेंस मिलता है, उसको एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ भाई, अब इसके साथ मेरा नाता जुड़ गया, यानी मेरे जीवन के संकट के काल में भी ये मेरा साथी है. मैं समझता हूं ये एक गोल्ड का अल्टरनेट बनने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं. क्या हम 75 साल जब मनाए तब इन चीजों को अचीव करने की दिशा में कुछ कर सकते हैं क्या? आप देखिए, एक बैंक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंट बन सकता है. आईसीआईसीआई ग्रुप को अपनी 60वीं सालगिरह पर अपने ग्राहकों और देश भर से आए इन मेहमानों से विश्वास और मोहब्बत का तोहफा मिला, तो आईसीआईसीआई ग्रुप ने देश को बहुत ही हाईटेक और कारगर रिटर्न गिफ्ट दिया. और वो तोहफा है डिजिटल विलेज का. मामूली गांव से एक पूरी तरह स्मार्ट विलेज.
गुजरात के साबरकांठा जिले का अकोदरा गांव। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सपना है कि भारत डिजिटल इंडिया बने। जब हम डिजिटल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की तस्वीरें आती हैं, कुछ बड़े बड़े शहरों की, बड़े बड़े देशों की तस्वीरें आती हैं। परंतु भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसीलिए आपके डिजिटल इंडिया मिशन से प्रेरणा लेकर हमने भारत के एक गांव को पूरी तरह से डिजिटल विलेज बना दिया है। ये गांव है अकोदरा, जो गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। अकोदरा के कुछ निवासी यहाँ हमारे साथ हैं और इससे भी कई अधिक निवासी वीडियो द्वारा समारोह देख रहे हैं। अकोदरा वासियों केम छो? તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીના હસ્તે તમારું ગામ ડિજિટલ વિલેજ બનશે। Respected Prime Minister, you have articulated India's key strengths as 3 Ds: demand, democracy, and demographic dividend. Our concept of digital village revolves around 3 C's: cashless, connected, and comprehensive. Cashless, because we have created a fully cashless digital payment ecosystem across various points in the village, such as village shops, the mandi for sale of agri-produce, the cooperative society for sale of milk. Next, connected. There is a high-speed broadband connectivity throughout the village through a Wi-Fi tower. We have put in place a terminal for display of prices of agri-commodities. We have also created a website and Facebook page for the village. And finally, this initiative is comprehensive because it covers many areas of daily life: digitization of school records, implementation of a school management software, smart devices and boards in the classrooms, audio-visual curriculum of the Gujarat board in Gujarati language, video-based educational content and Anganwadis, telemedicine and skill development. सर, इस इनिशिएटिव का प्रभाव ये है कि आज इस गांव में हर एडल्ट, और मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि न सिर्फ हर परिवार बट हर एडल्ट, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके पास एक बैंक अकाउंट है। जो लोग कोऑपरेटिव में दूध बेचने जाते हैं उन्हें कोई पर्ची नहीं लेनी पड़ती, कैश का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि दूध के फैट कंटेंट और वेट की मेजरमेंट के हिसाब से उनका पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। स्कूल के बच्चों को टेक्नोलॉजी द्वारा अच्छी शिक्षा मिल रही है। अकोदरा की लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो आगे जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। I would like to thank the government of Gujarat and the local officials for their support in this project. I would also like to thank the people of Akodra. Our aim through this initiative has been to show that technology can be used to eliminate barriers that separate rural and urban India. To realize the vision of a rural India that is not rural but urban. Villages where residents can access modern facilities and services like their urban counterparts. This is, of course, one attempt by one organization in one village, but I sincerely hope that this one initiative will catalyze many such initiatives across the country, and together we will work towards making the dream of digital India a reality. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है डिजिटल इंडिया। फिर उनसे बेहतर और कौन हो सकता है जिनके हाथों से राष्ट्र को बतौर उपहार डिजिटल विलेज अकोदरा सौंपा जाए। ये डिजिटल विलेज की कल्पना आने वाले दिनों में, जो डिजिटल इंडिया का सपना हम पूरा करना चाहते हैं,
उसमें ये भी चीजें एक मॉडल के रूप में हमारे सामने आएगी और काम आएगी। मैं इस इनिशिएटिव के लिए भी आपको बधाई देता हूं। अकोदरा गांव के लोग तो अब कैशलेस उनका कारोबार चलेगा, लेकिन हम ये सपना कब पूरा करें कि भारत में भी कैशलेस आर्थिक व्यवस्था विकसित हो। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में इसकी कंपटीशन होनी चाहिए। कौन बैंक है जिसका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है और कैशलेस है। अकोदरा के कुछ लोगों ने इस समारोह में शिरकत की, लेकिन पूरा अकोदरा गांव मौजूद रहा आईसीआईसीआई ग्रुप के इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साबरकांठा के एक छोटे से गांव के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मजामा बैला बजा। मैं चंदा जी का विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि जिस काम को मैं बड़े आग्रह से करना चाहता हूं, स्वच्छ भारत, उन्होंने उस बीड़े को उठाया, स्वयं ने भी इस काम को किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने सभी ब्रांचेज को सप्ताह में एक दिन सफाई का कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। एक मोमेंटम खड़ा हुआ है। उनके इस प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूं और पूरे ग्रुप को, सभी ब्रांचेज को, उस ब्रांचेज में बैठे हुए सभी बैंक के कर्मचारियों को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बधाई देता हूं। लेकिन बैंक सेक्टर से मेरी एक और अपेक्षा है। क्या हमारा ग्रुप एक साल के भीतर भीतर बैंक फाइनेंस की मदद से नौजवानों को प्रेरित करके कम से कम 1 लाख स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देते होंगे, आप पावर प्रोजेक्ट में देते होंगे, आप पोर्ट डेवलपमेंट के देते होंगे, बहुत बड़े बड़े कारोबार आपके चलते होंगे। लेकिन मैं एक और क्षेत्र में ले जाने के लिए कह रहा हूं, छोटे छोटे लोग जो इस एंटरप्रेन्योर के रूप में इस फील्ड में आए, उनको प्रेरित करें। एक बहुत बड़ा काम होगा। सूचना, प्रसारण और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने भी आईसीआईसीआई ग्रुप की समाज में पहुंच और जज्बे की प्रशंसा की। Let me at the very outset compliment and congratulate the ICICI Group on 60 years of its glorious existence. On your 60th birthday, instead of accepting gifts, you've gifted this country with a role model village. The banks in India, both in the public sector and the private sector, will be the catalyst. And this one is an opportunity which will make India take a historic turn. And I'm sure with the institutional capacity of 60 years, the ICICI Bank will be in the forefront of this change, and others will certainly emulate what you do. I wish you a very strong history for the bank in the years to come, and I'm sure in the service of this country, you shall continue to perform the great role which you have done. My best wishes to you and all the staff members of the ICICI Group. Thank you. आईसीआईसीआई ग्रुप की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में विशिष्ट अतिथियों ने भी शिरकत की। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं आईसीआईसीआई ग्रुप के बारे में। आईसीआईसीआई ने बहुत लोगों का फाउंडेशन दिया है, हम लोग उनमें से एक हैं। चर्चगेट पे बैंक थी, सबसे छोटे बैंकर थे, आज हर कंपनी के साथ जुड़े हैं, आज बहुत सारी कंपनियां हैं, इस ऊंचे पोजीशन पे पहुंचे हैं। आईसीआईसीआई का बहुत योगदान रहा है। हमारा भी रिश्ता आईसीआईसीआई ग्रुप से कुछ 30-35 साल से है और आईसीआईसीआई का
सब चीज़ में डेवलपमेंट में जो इंडिया ने किया है उसमें ICICI का काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। हमारे ग्रुप के साथ भी 1980 से जुड़े हुए हैं हम ICICI के साथ, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप आई है। अच्छे दिनों में, कठिन दिनों में दोनों सभी साथ रहे हैं। ICICI एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। मैंने तो बहुत बैंक्स के साथ काम किया है, लेकिन जो क्विक डिसीजन मेकिंग है और जो हमेशा अपने कस्टमर के साथ रहते हैं, उससे बेटर कोई बैंक नहीं है। पिछले 60 वर्षों से ICICI ग्रुप अपने जज्बे और अपनी लगन से देश की तरक्की से जुड़े हर पहलू में योगदान देता आ रहा है। ICICI ग्रुप के इरादों की मजबूती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में भी विकास की राहों पर ICICI ग्रुप देश के साथ हम कदम और हम राह रहेगा।